Hello, everyone. A very good evening to all of you, and a warm welcome to the second session of Spoken English Batch on Careerwell app. I welcome you all. Am I audible and visible properly? Is everything all right? Please do let me know. आवाज बिल्कुल क्लियर है मेरी, आप तक पहुंच रही है? गुड इवनिंग खुशी, कार्तिक, ज्योति, सोनू, नंदन. वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. प्रियंका, प्रकाश, स्वीटी, सूरज. Is everything all right? Chaliye, that's great. So let me start this session by asking a simple question. Whatever we have discussed in the last session and even before that in the intro session, I had given some piece of advice to you people, right? In terms of homework that should be done by you people in order to improve your speaking in English language. How many of you have done that? कितने लोगों ने किया है? कुछ न कुछ होमवर्क किया है. कल मैं आपके कमेंट्स कुछ देख पा रहा था. सत्य प्रकाश ने कुछ कमेंट लिखा था कि सर मैंने एक्सरसाइज की थी, 30 मिनट्स का एक सेशन सुना और शायद उसके सुनने के बाद आई कुड स्पीक ओनली फॉर 40 सेकेंड्स. सो बिकॉज यू नो दिस इज अ स्पोकन बैच, विदाउट फीडबैक देयर इज नो पॉइंट ऑफ गिविंग जस्ट ज्ञान. सो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू आर फेसिंग और क्या किया आपने और क्या रिजल्ट आया, तब हम आगे की बात करेंगे. क्योंकि अभी हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं. जो हमारी कन्वर्सेशन वाली इंग्लिश है, कन्वर्सेशनल इंग्लिश है, हम उसी के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं. यस, टेल मी व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस. हेलो जी, हेलो एवरीवन. चैलेंजेस क्या हैं आपके बोलने में? कुछ कोशिश करी या नहीं करी आपने बोलने की? आई डिड सर, बट दैट वाज नॉट वेरी इफेक्टिव. ओके अंजलि, माई टाइमिंग वाज 1 minute. अमित इज सेइंग I am facing problem when reading. What kind of problem you are facing, Naveen? English commentary सुनी. Good experience. इसके कैसा good experience रहा? बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, एनडीए एसएसबी के लिए बिल्कुल उपयुक्त बैच है ये. मृणाल is also saying I have started listening English conversations. Very good. So you know ये काम आपको करना पड़ेगा in order to improve this spoken part, right? यू नीड टू स्टार्ट एक्टिव लिसनिंग. मैं बार बार कह रहा हूं और तब आपको ज्यादा मजा आएगा क्लास में. अब अगर हम एक ऑफलाइन सेटअप में होते, आप बैठे होते सामने, तो बातचीत करने का एक अलग मजा होता. लेकिन फिर भी मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं, जैसे होमवर्क क्लास में चेक होता है ना, तो यहां पे होमवर्क सिर्फ प्रैक्टिकल है. एज फार एज स्पोकन इंग्लिश इज कंसर्न, all the homework is in practical format only. You need to listen to something, right? And then you need to practice, you need to observe yourself. You need to analyze your performance, that what kind of mistakes I am committing, I am falling short of words, or I am not comfortable in structuring sentences, what kind of challenges I am facing, and then you need to work on those areas only. So ये बहुत ही systematic process है, ठीक है? Okay, it is my first class today. जितने लोगों की फर्स्ट क्लास है, बहुत बहुत स्वागत है आपका. वोकैब की प्रॉब्लम है, अच्छा जी. चलिए, listen 15 minutes and could speak only 1 minute, Ajit is saying. So that is the experience for most of the people. But if you are not practicing this particular exercise, how would you realize that what is your potential? Because here we all are preparing for speaking in English whenever that kind of situation arises. Whether you are facing an interview, you are in a GD setup, you are in a formal conversation, you are in an informal conversation. हाउ टू स्पीक. विदाउट स्पीकिंग आप उसको प्रैक्टिस कर नहीं पाएंगे. मैं यहां पे ज्ञान दूंगा, बट उस ज्ञान को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. प्रैक्टिस करोगे, यू विल फेस कपल ऑफ चैलेंजेस, यू विल आस्क दोज चैलेंजेस एंड देन आई विल आंसर दैट हाउ टू इंप्रूव ऑन दोज थिंग्स. सो प्लीज ईमानदारी से ये काम करना है, ठीक है? बिना 30 मिनट्स एक्टिव लिसनिंग के आपको सोना नहीं है. 24 आवर्स में ये काम जरूर दे दीजिए अपने आप को, राइट? Watch a particular talk show, anything you can watch, right? But in English, and try to summarize those things, whatever you have listened, in your own words, and then observe your speaking, your vocal intonation, vocal energy, voice modulation, projection, pronunciation, all these things. कि मैं कहां पे गड़बड़ कर रहा हूं. बहुत सारे लोग तो pronunciation को भी pronunciation बोलते हैं. Vishnu is writing a long message. Yes sir, I too try to speak what I heard, but I found myself thinking whether what I was going to speak would be right or not. In thinking these things, I was not able to continue speaking. Very ईमानदार, honest response of Vishnu.
दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये मत सोचो ना उस समय की जो मैं बोल रहा हूं, मैंने क्या कहा था, सबसे पहला स्टेप है कि सेल्फ कॉन्वर्सेशन, सॉलिलॉक्वी, टॉक टू योर सेल्फ, वॉट एवर यू हैव लिसन, आपको खुद सुनना भी खुद है, कान में हेडफोन लगाओ, मोबाइल में आपने हेडफोन अपना कनेक्ट किया, एंड वॉच अ टॉक शो, any business channel, any TED talk or anything like that, and train your mind that I am going to keep all these points in my mind. You can jot down certain points as well, so that after the completion of that talk you are able to remember that yes, these are the 5 points which are discussed in a detailed manner in this particular talk show. And then give this task to yourself, yes, now I am going to speak about this topic what I have heard for the last 30 minutes, right? एंड फिर अपने मोबाइल में आपको रिकॉर्ड करना, वहां कोई देख थोड़ी रहा है कि आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं, गलतियां कर रहा हूं, गलतियां करोगे, फिर उसको सुनो अपनी स्पीकिंग को, गलतियों का एहसास होगा, कोई बात नहीं, सभी इंप्रूव करते हैं इसी तरीके से। आपको क्या लगता है जो भी आज एक फ्लुएंट स्पीकर है, अच्छा स्पीकर, उसको वो एक दिन में बन गया होगा? सब खुद की टेस्टिंग करते हैं। मैं खुद से, मैंने आपको पहले दिन बताया था कल की क्लास में कि भाई जो आप अपनी स्टोरीज बना सकते हैं, जो वहां पे स्टोरीज बनाना बड़ा कारगर होता है। पहली क्लास का मतलब परसों वाली क्लास में आप खुद एक कहानी बना रहे हो, स्टोरी बना रहे हो। मैंने कहा था छोटी छोटी चीजों के ऊपर बात करना शुरू कर दो जो जिंदगी में बहुत आपके साथ जुड़ा हुआ है, कोई इमोशन है, कोई एक्सपीरियंस है, कोई फीलिंग है। गिव योर सेल्फ एनी टाइटल रैंडम एंड टॉक अबाउट पर्टिकुलर टॉपिक, राइट? यू हैव थॉट्स, आपके दिमाग में इमोशन है, फीलिंग है, उसको इंग्लिश में ढालना है। मैं यहां पे पूरा कोर्स पढ़ा जाऊंगा, आप अगर ये काम नहीं करोगे अपने बोलने वाला, तो इन चीजों पे इंप्रूव नहीं कर पाओगे आप, ठीक है? सो आइए नाउ, हाँ जी, समरी लिखना बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है, और समरी अभी कैट वाले में तो आता भी है, कैट के कोर्स में मैं करियर विल पे अभी समरी राइटिंग एक्सरसाइजेस करा भी रहा था। Summary writing is very important because when you read any article in newspaper, suppose there are 8 paragraphs in that particular article. This is something which is very, organic understanding that if the author is switching to the next paragraph, there is some sort of switching either in the idea of the author or जिस तरीके जो बात वो कह रहा है उसमें थोड़ा गियर बदल रहा है वो, तभी वो अगले पैराग्राफ पे जाता है, राइट? सो आपका काम यह है कि while you are reading that particular article, jot down certain words with each of the paragraph so that you could remember, yes, this is the theme of the first paragraph, this is the theme of the second paragraph, this is the theme of the third paragraph. So if there are 8 paragraphs in a article, lengthy article, at least there are 8 major points, main points in that particular article, because in general how you talk, how you write, how you start something, you introduce something, you explain that, then you provide some sort of examples, facts, figures in order to substantiate your introduction and explanation, and then you come to the conclusion. So observe these things. ये चीजें अगर आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे आप अपनी बात नहीं कह पाएंगे। आई थिंक एक चैलेंज आप में से बहुत सारे लोगों ने फेस किया होगा आर्टिकुलेशन का, दैट यू डू नो द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन, you do know the answer of the question, but when you are going to talk about that, आप वहां खिचड़ी कर देते हो. If there are 10 points to talk about and you have prepared about those points, right? So जो बात तीसरे नंबर पे कहनी है आप पहले पे कह दोगे, पहले वाली बात चौथे नंबर पे आ रही है, कंक्लूजन कई बार लोग पहले ही बोल देते हैं बिकॉज दे हैव थॉट लॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, यू नो. सो ये जो है कि भाई इंट्रोडक्टरी आइडिया, देन द मेन बॉडी ऑफ योर थॉट स्ट्रक्चर एंड देन द कंक्लूजन. You need to practice these things, and ये ऑब्जर्वेशन से आपको आएगा कि यस ये टॉपिक था डिस्कशन का, बात करी यहां पे लोगों ने, ये मेन आइडिया थे. आपके पास कोई भी विचार है, यू हैव टू सब्सटेंशिएट दैट ओपिनियन बाय प्रोवाइडिंग सम सॉर्ट ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स, एग्जांपल्स. डू यू हैव रेलेवेंट एग्जांपल्स और नॉट? बिकॉज ओपिनियन विदाउट बीइंग सब्सटेंशिएटेड बाय डेटा, फैक्ट, फिगर, उसका कोई मतलब नहीं है. एंड इफ यू हैव जस्ट डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स एंड यू आर नॉट एबल टू पुट दोज फिगर्स in perspective in any particular argument or idea, again that is of no value. So you need to learn these things by observing these kinds of resources, right? चलिए जी, आइए अब let's get started. कल हमने ये 2 टॉपिक कर लिए थे, how to start a conversation in English and how to keep a conversation going. We had discussed these 2 things, right? कि बात शुरू कैसे करो और उसको कंटिन्यू कैसे करो. आज तीसरा मामला है ग्रीटिंग्स का, राइट? सामने वाले को ग्रीट कैसे करना है आपने,
और इंट्रोडक्शन कैसे देनी है. इट्स नॉट अबाउट द इंटरव्यू वाला इंट्रोडक्शन, इट्स नॉर्मल इंट्रोडक्शन. यस. Here is a list of essential phrases to say hello, introduce yourself, and introduce other people to each other. Just observe the way I am reading these lines. If I read this particular line, here is a list of essential phrases to say hello, introduce yourself, and introduce other people to each other. नहीं, बात समझ में नहीं आई. Because the importance of punctuation you need to understand. कि punctuation का क्या रोल है. जहां कॉमा लगा है वहां आवाज भी रुकनी चाहिए थोड़ी सी. राइट, वहां आवाज रुकनी चाहिए. सो हियर इज अ लिस्ट, हियर इज अ, अब ऐसा नहीं हियर एज दोनों बराबर नहीं है. ऑब्जर्व करो, मुझे भी ऑब्जर्व करो जो मैं पढ़ रहा हूं. हियर इज अ लिस्ट ऑफ एसेंशियल फ्रेजेस टू से हेलो, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड इंट्रोड्यूस अदर पीपल टू ईच अदर. ऑब्जर्व दीज थिंग्स. Saying hello, here is a typical conversation structure. A says, say hi, hello, and follow with a phrase like how are you, right? This is something what we ask. How are things? ये हम नॉर्मल पूछते हैं इस तरीके से. And then the B answer with a phrase like fine and ask a similar question, right? और जब B सवाल पूछेगा तो डेफिनेटली A भी उसको रिप्लाई करेगा, yes I am absolutely fine, thank you. So पूछने के लिए धन्यवाद. तो ये क्या, ये नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है. Here is an example. A says, hi Savi, how are you? B says, fine thanks. And you? अब ये भी ध्यान में देना है. ऐसा नहीं fine thanks and you? No. इससे क्या पता लगेगा कि आप रट के आए हो, टेम्पलेट रट लिया है अपने. तो वो काम नहीं करना, बोलने से पता लगना चाहिए. Hi Savi, how are you? और उसके बाद fine thanks. आवाज में भी कमी आनी चाहिए. Fine, I am absolutely fine. Thanks for asking. ये भी कहा जा सकता है. अभी हम क्योंकि बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं, कम से कम शब्दों में कैसे बात करनी है. एंड देन एंड यू. अब यहां पे एंड यू से समझ में आ गया कि मैं तुम्हारा हालचाल पूछ रहा हूं. ए सेज या फाइन थैंक्स. सो यहां पे या आई एम एब्सोल्युटली फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन, राइट, आई एम गुड, थैंक्स. तो क्योंकि सामने वाले ने भी आपसे पूछा है तो आपको थैंक्स बोलना है. ये पोलाइट कॉन्वर्सेशन का बिल्कुल बेसिक एटिकेट है ये. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा? फाइन, फाइन थैंक्स, ओके, ओके थैंक्स, ऑल मीन द सेम. तो वही वाली बात कि इसमें कुछ रटना नहीं है. जब आप इस तरह के कॉन्वर्सेशंस को सुनेंगे ना, जो मैं आपको बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि प्लीज देखें, ऑब्जर्व करें, तो ये चीज बताने वाली नहीं है क्योंकि कोर्स पढ़ाना है, कोर्स स्ट्रक्चर है, तो मुझे बताना पड़ेगा आपको, तो मैं बता रहा हूं. आई एम वेरी वेल, थैंक्स इज मोर फॉर्मल. अब आप देखो, व्हेन यू आर स्ट्रक्चरिंग अ सेंटेंस लाइक आई एम वेरी वेल, so definitely this is more formal. So you need to observe these things as well, that where you are using these kinds of phrases. If you are working in an organization and there is a boss of yours and you are meeting in the morning to your boss, आप वहां पे कैसे बात करेंगे? तो वो फॉर्मल सेटअप हो गया, राइट. बट इफ यू आर मीटिंग टू योर कलीग, अब वहां पे किस तरीके से बात होगी वो बिल्कुल अलग है क्योंकि वो आपके साथ का है. तो एंड ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं while you are writing the emails or you are writing messages as well. I have seen a lot of informal structures of the students जो मुझे मेल करते हैं या मैसेजेस करते हैं. Sometimes they do not know that how to write a email or how to write a message. Because हम बहुत ज्यादा इनफॉर्मल हो गए और उस चक्कर में काम खराब हो जाता है. तो और ये सारी चीजें इंप्रेशन डालती हैं सामने वाले पे, राइट. Impression डालती. The way you are writing an email, the way you are writing your cover letter while you are applying for a job, right? Whatever you have mentioned in your cover letter, that actually creates an impression in the mind of the employer कि भाई मुझे इसको इंटरव्यू के लिए बुलाना है या नहीं बुलाना है. और अगर वो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है तो आप वहीं पे इंप्रेशन छोड़ देते हैं. हाई इज वेरी इनफॉर्मल. यू डू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. हाई इज इनफॉर्मल, हेलो इज मोर फॉर्मल इन कंपैरिजन टू हाई, राइट. सो हाय सर से बेहतर है हेलो सर, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो, राइट. हाय अपने फ्रेंड को कर लो. सो इट्स नॉट अबाउट कि आप किसी के साथ भी हाय बोल दे रहे हो. अब जैसे हमारे कल्चर में तो ये बहुत है ना कि भाई ये, और देखो यहां पे इंग्लिश और हिंदी में डिफरेंशिएट कर सकते हो आप. इन इंग्लिश फॉर सेकेंड पर्सन वी हैव ओनली वन प्रोनाउन एंड दैट इज
यू, दैट इज ओनली यू, यू डू नो, चाहे सिंगुलर है, प्लूरल है, तुम हो, तुम दोनों हो, तुम सब हो, सबके लिए यू है. बट इन हिंदी वी हैव व्हाट, वी हैव तू. Yes or no? We have tum, we have aap, and we do know where to use tu, where to use tum, and where to use aap. This kind of differences between hi and hello as well. So if there is a friend of yours, आपके साथ का है, आप हाय बोल रहे हैं या साथ में काम करता है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. बट इफ यू आर टॉकिंग टू योर बॉस, वहां पे हाय सर से बेहतर है हेलो सर, राइट? तो ये चीजें समझनी है. हिंदी उस मामले में थोड़ी अमीर है. And that is why translation is the very tough thing, because to transfer the sensibility of one language in other language into other language is really a difficult job, because हर भाषा की अपनी sensibility है, understanding है. In German language I think they are used to 6 to 7 words for the second person, जैसे अभी हमने बात करी ना, तू, तुम एंड आप. तो इस तरीके से वहां पे कुछ 6-7 वर्ड हैं. रशियन बहुत रिच लैंग्वेज है उस मामले में. वो कई बार इंग्लिश को उतनी इज्जत नहीं देते रशियन लोग, आप अगर देखें तो उनको ये लगता है कि इन इंग्लिश इफ देयर आर 10 वर्ड्स टू डिपिक्ट अ सर्टेन इमोशन, इन रशियन लैंग्वेज वी हैव 20 वर्ड्स. सो वी आर मच रिचर इन कंपैरिजन टू इंग्लिश, राइट? सो ये जब आपका भाषा के प्रति प्रेम जगेगा ना, तो ये सारी चीजें आपको भी धीरे धीरे पता लगने लगेंगी. मैं आपको बहुत सारे रिसोर्सेज बताऊंगा आने वाले दिनों में, पढ़ने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए. पहले आप शुरू तो करें जो आपसे कह रहा हूं. चले साहब, तो यहां पे इज मोर फॉर्मल, नॉट बैड, थैंक्स, कांट कंप्लेन आर लेस पॉजिटिव, लेस पॉजिटिव. अब सपोज द काइंड ऑफ सिचुएशन वी ऑल आर गोइंग थ्रू, दिस पैंडेमिक, कोविड, यू नो. सो सभी के हालात खराब हैं जो जहां पे है, पर्सनली, प्रोफेशनली, एवरीवन इज ट्राइंग टू सर्वाइव थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो अब वहां पे क्या है, तो आप क्या बोल रहे हो, यार हाउ आर यू, यार नॉट बैड, थैंक्स फॉर आस्किंग. सो अब नॉट बैड क्या है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, लेस पॉजिटिव. इट इज लेस पॉजिटिव. आप हमेशा उसी मोड में तो नहीं हो सकते ना, एवरीथिंग इज फाइन, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग, नहीं. आप वहां पे अभी ये थोड़ा लेस पॉजिटिव हो गया, या कांट कंप्लेन, इन तरह के फ्रेजेस का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है हालचाल बताने के. सो ये थोड़े से लेस पॉजिटिव हैं, उतने ज्यादा पॉजिटिव नहीं है जितने ऊपर वाले एक्सप्रेशन. आई एम वेरी वेल, थैंक्स इज मोर फॉर्मल. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. इन इंग्लिश देयर इज अ फॉर्मल सिचुएशन, देयर इज इनफॉर्मल सिचुएशन. आगे जाकर के आप देखोगे द डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, एंड पर्टिकुलरली इन स्पोकन इंग्लिश देयर इज लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिकन इंग्लिश. You must have seen that gotta and wanna kind of stuff, you know. And nowadays people say normal English and advanced English. There is nothing like that, normal English and advanced English. तो ये सब टर्म्स में फंसने की जरूरत नहीं है. तो स्पीकिंग में देखो क्या होता है कि कल्चर का बहुत इंपैक्ट आता है स्पीकिंग के ऊपर. आप शब्दावलियां देख लें, हमारे बहुत सारे हिंदी वाले शब्द जो हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में. आप गुरु की बात कर लो, मैनेजमेंट गुरुज. Now this phrase is very normal and is used and is being used in lot of best sellers. दुनिया भर के ऑथर इसका इस्तेमाल करते हैं. जबकि आपको पता है गुरु जो शब्द है वो संस्कृत से आया, हिंदी में इस्तेमाल हुआ, बट अब आप इंग्लिश में इस्तेमाल करते हो. तो ऐसे बहुत सारे हमारे शब्द हैं. लाइक द वर्ड इज जुगाड़, एंड जुगाड़ इज अ टिपिकल नॉर्थ इंडियन वर्ड, एंड बट द वेस्टर्न पीपल हैव दिस इंप्रेशन दैट इंडियंस आर वेरी गुड in making जुगाड़, and जुगाड़ is perceived as in what, कि भारतीय लोगों का दिमाग बहुत अच्छा है बड़ी बड़ी समस्याओं का सस्ता और टिकाऊ समाधान ढूंढ लेने में. So we are pretty entrepreneurial in that way. We do not complain much. We always try to come up with something new कि भाई ये काम हम कैसे कर सकते हैं. बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है कि आप मेट्रोज के बाहर दिल्ली में आप देखें तो वो कई बार वो कचौरी वाले होते हैं, वो एक ही साइकिल पे पीछे उसने अपनी सब्जी भी रखी हुई है, वो भी गर्म हो रहा है, आगे उसके पास कचौरी भी है, उसी साइकिल में उसने कूड़ा पात्र भी लगा रखा है, स्टोव भी सेट कर लिया है. उसको अपनी जिंदगी से शिकायत नहीं है. वॉट एवर रिसोर्सेज दैट पर्सन हैज इज ट्राइंग टू मेक मोस्ट ऑफ दैट, राइट. तो इस सेंस में हम जुगाड़ शब्द का इस्तेमाल देखते हैं. तो कहने का मतलब कि अब क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी है, दुनिया भर में हम छाए हैं, तो हमारे बहुत सारे शब्द जो हैं वो अंग्रेजी में अब इस्तेमाल होने लग गए हैं, राइट. उसी तरीके से अगर आप लास्ट सेंचुरी की बात करो, सो डेफिनेटली द लैटर पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी में अमेरिका का प्रभाव ज्यादा रहा. तो अमेरिकन जो इंग्लिश है उसका बोलने में बहुत
इस्तेमाल होता है। और प्लस साथ ही साथ इफ यू लुक एट द स्पेलिंग पार्ट, you must have observed the spelling of center, CENTRE or TER. You are confused most of the times while you are writing something. As far as the spelling of color is concerned, COLOR or COLOUR. So LOUR is British, OR is American. PROGRAM, program, this is American spelling, but PROGRAMME, program, this is British. So while you are writing anything, like you are writing a letter, you are writing an essay in any of your exams, you are supposed to follow the standard British English, right? So lot of other things, अभी हम उसके बारे में आगे बात करेंगे, एक सेशन ही पूरा कर लेंगे हम आगे ब्रिटिश और अमेरिकन के बीच में, ये क्या फर्क है, कैब एंड टैक्सी, अपार्टमेंट एंड फ्लैट. सो फॉर द सेम थिंग देयर आर डिफरेंट वोकैबुलरीज, राइट? शॉपिंग मॉल कहां बोलते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर कहां बोलते हैं, ये सारी चीजें कल्चर से आती हैं, ब्रिटिश एंड अमेरिकन. And definitely Americans, they need to devise a different identity out of the British. तो उनको अब भाषा में थोड़ा बहुत तो चेंज करना ही करना है. तो हमारे लिए कई बार ये सारी चीजें क्या होती हैं, एक चैलेंज के तौर पे इस्तेमाल होती हैं. आइए, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, in formal situations you can also say good morning, good afternoon and good evening. Good morning for the morning up to lunch. Good afternoon for the afternoon until early evening, that is around 6 p.m. Good evening for the rest of the evening. Good night when you leave a person at the end of the evening or when you go to bed. Right. So ये चीज आपको समझनी है. कई बार ग्रीटिंग का हमें समझ में नहीं आता. सत्यप्रकाश, आई टेक योर क्वेश्चंस इन द लास्ट 5 minutes. राइट, अभी मैं, आप इधर ध्यान दें तो थोड़ा अच्छा रहेगा. सभी लोगों से ये गुजारिश है. देखो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, आप कब बोलें, कब तक बोलें. कई बार मैं देखता हूं कि गुड नाइट स्टूडेंट्स, अगर मान लो किसी से बात हो रही है और वो बहुत इस चीज को लेकर अलर्ट है, अगर अंधेरा छा गया है तो वो विश भी जब करते हैं तो गुड नाइट बोलते हैं. मतलब पहली मीटिंग साफ साफ लिखा हुआ है, व्हेन यू लीव अ पर्सन एट द एंड ऑफ द इवनिंग, तब आप क्या बोलोगे, गुड नाइट. और व्हेन यू गो टू बेड, तब आप गुड नाइट बोलते हैं. सो इवन इफ यू आर मीटिंग समवन एट 9 PM, राइट, एट द टाइम ऑफ योर मीटिंग, जब आप उस इंसान से पहली बार मिल रहे हो, तब भी आप गुड इवनिंग ही बोलोगे. गुड नाइट आप तब बोलोगे जब आप वहां से जा रहे हो. ठीक है. गुड मॉर्निंग का टाइमिंग क्या है, फॉर द मॉर्निंग अप टू लंच. डेफिनेटली गुड आफ्टरनून, नून के बाद का फॉर द आफ्टरनून अंटिल अर्ली इवनिंग. अब ये जो है ना 6 PM, ये कहीं पे 5 PM है, कहीं 4 PM है. कल्चर का अलग अलग फर्क है, तो वो कॉमन, थोड़ा सा आपको अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, राइट? कि अब मान लो थोड़ी सी डस्की सा माहौल हो चुका है, अंधियारा हो चुका है, तो वहां पे गुड इवनिंग आप बोल सकते हैं, बिल्कुल, राइट? एंड बिकॉज ये भी अंधेरा भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पे होता है, तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंसिकल है. एंड गुड इवनिंग पूरा फॉर द रेस्ट ऑफ द इवनिंग, पूरा का पूरा रात तक, जब तक आप उस जगह से अलग नहीं हो रहे, विदा नहीं हो रहे, जा नहीं रहे, तब तक आप उसका यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो ये हो गए आपके सैल्यूटेशंस, ग्रीटिंग्स एंड ऑल. अब इंट्रोडक्शन की बारी आती है. इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ. हियर आर सम सिंपल फ्रेजेस यू कैन यूज. जो हमारे बालक बच्चे यहां करते हैं ना, सर अंग्रेजी नहीं आती है, सेंटेंस बनाने नहीं आता, ये सब उन्हीं के लिए, इसीलिए बिल्कुल बेसिक लेवल पे. सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज बेसिक फ्रेजेस. हाँ जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया, इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ. व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ओवर हियर? 95% people start their introduction by saying myself, myself Vishwendra, myself Sajid, myself Monica, Ruchi, whatsoever, right? So ये गड़बड़ है. myself यूज नहीं होता इन pronoun में, in pronoun lessons of pronoun. आपने ये चीजें पढ़ी हैं. myself is called reflexive or emphatic pronoun, right? And that depends on the placement of this particular word. जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहां पे आपको एक सब्जेक्ट के तौर पे अपनी बात कहनी है, और उसके लिए क्या एक्सप्रेशंस हैं? 2 हैं. आप आई एम लगा सकते हो सिंपली, ज्यादा सोचना नहीं है वहां पे. आई एम योर फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम प्लस सरनेम, दोनों चॉइसेस आपके पास हैं. कहां लगाना है अभी उसके बारे में बात कर लेंगे. दूसरा क्या है? माई नेम इज योर फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम प्लस सरनेम. जैसे मैं ये कह सकता हूं आई एम सत्येंद्र, मैं ये भी कह सकता हूं आई एम सत्येंद्र तिवारी, या मैं ये कह सकता हूं माई नेम इज सत्येंद्र एंड माई नेम इज सत्येंद्र तिवारी. सो दिस इज व्हाट, ये दोनों पॉसिबिलिटीज आपके पास हैं. एंड इफ यू आर स्पीकिंग दीज 2 स्ट्रक्चर्स, ये बिल्कुल सही है,
डोंट एवर यूज माई सेल्फ, दिस इज ब्लंडर, दिस इज ब्लंडर। एंड आप एक बहुत ही रॉन्ग सिग्नल सामने वाले को भेजते हैं अपनी अंग्रेजी को लेकर के। बट मुझे पता है अभी जब मैं शायद आपसे इंटरव्यूज करूंगा भी, जैसे मैंने वीडियो की बात करी थी कि वीडियो कॉल्स पे हम इन सब चीजों को थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, तो भी देखना बहुत सारे लोग फिर भी माई सेल्फ बोलेंगे, बिकॉज वो बहुत गहराई से 10-15 साल से दिमाग में घुसा हुआ है। सो इवन इन द इंट्रो सेशन आई सेड दिस थिंग टू यू कि भाई यू नीड टू बी वेरी वेरी एक्टिव, होश में रहना बहुत जरूरी है जब आप बोल रहे हैं। बेहोशी में बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है और जैसे ही हम अपना ऑन करते हैं मीटर, वो निकलना शुरू हो जाता है। तो व्हाइल यू आर स्पीकिंग यू नीड टू बी वेरी अलर्ट कि मैं क्या बोल रहा हूं। अगला क्या है, इनफॉर्मल सिचुएशंस गिव योर फर्स्ट नेम एंड सरनेम। जैसे मैंने बताया इनफॉर्मल सिचुएशन, यू आर इन एनी इंटरव्यू और एनी काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ सेटअप, वहां पे आपको पूरा नाम बोलना होता है। इन इनफॉर्मल सिचुएशंस गिव योर फर्स्ट नेम, right? So suppose if there is a annual party of your company, right? And evening में पार्टी है, लोग मिल रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहां पे आप अपना सिर्फ फर्स्ट नाम ले सकते हैं, राइट? यस, लाइक माई नेम इज या आई एम, और उसके बाद आपने अपना नाम ले लिया, ठीक है? सो लेकिन फॉर्मल सिचुएशन में आप पूरा नाम देते हैं। द अदर पर्सन सेज प्लीज टू मीट यू और nice to meet you or good to meet you. These kinds of expressions you can use, right? So suppose someone is introducing you, आपको वो इंट्रोड्यूस मतलब अपने आप को आपसे इंट्रोड्यूस कर रहा है वो, तो आप क्या बोलने वाले हैं, दूसरा पर्सन क्या बोलेगा, प्लीज टू मीट यू या नाइस टू मीट यू और गुड टू मीट यू। दीज एक्सप्रेशंस यू कैन यूज। दिस इज शुभम दधीच इन फ्रंट ऑफ यू। शुभम, दिस इज कहां यूज करते हैं, अभी उसकी बात कर रहे हैं। दिस इज जनरली हम तब यूज करते हैं, देखो इंट्रोडक्शन में भी दो चीजें आ गई। एक तो आप इंट्रोड्यूस खुद को कर रहे होते हैं और एक है कि आप किसी और को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो अगर शुभम अपने दोस्त, मान लो राजेश उनके दोस्त हैं और राजेश को शुभम जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तब वो सामने वाले को बोलेंगे कि दिस इज राजेश, दिस इज माय फ्रेंड कॉमा राजेश। ये तरीका है, ठीक है? दिस इज से बेहतर है। आ रहे हैं प्रकाश दिस इज के ऊपर, अभी अगली स्लाइड उसके बारे में है। तो ये एक्सप्रेशंस आप यूज कर सकते हैं, राइट? प्लीज टू मीट यू, नाइस टू मीट यू और गुड टू मीट यू। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं, इट्स नॉट अबाउट दीज वर्ड्स आर मगिंग अप दीज वर्ड्स, इट्स ऑल अबाउट दैट हाउ यू आर प्रोजेक्टिंग दीज वर्ड्स। आप कैसे इन शब्दों का बोल कैसे रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी आवाज किस तरीके की है, जिससे ये पता ना लगे कि तुम फ्रेजेस रट के आए हो, टेम्पलेट्स रट के आए हो। नहीं, दैट शुड फील कि ये बिल्कुल एफर्टलेसली आ रहा है। एग्जाम्पल कॉन्वर्सेशंस, ए सेज हाय आई एम केतन, बी सेज प्लीज टू मीट यू आई एम जतिन, राइट? सो अब ये नहीं कि सामने वाले ने बोला हाय, या अब ये हाय क्या है इनफॉर्मल सिचुएशन में, हाय आई एम केतन, तो आपको हाय आई एम चेतन, नो, ऐसे नहीं। सो सामने वाला अगर आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है आपसे, तो आपको पहले गर्माहट दिखानी है। देखो कम्युनिकेशन, जब भी दो लोग मिलते हैं तो वो कैसे बातचीत आगे बढ़ेगी। अगर एक वार्मथ नहीं है तो सामने वाला कंफर्टेबल फील नहीं करता, तो आपको बोलना पड़ेगा प्लीज टू मीट यू, माई नेम इज जतिन या आई एम जतिन, राइट? सो ये प्लीज टू मीट यू पहले बोलना है, प्लीज टू मीट यू आई एम जतिन। सो उसके बाद वो भी अपना सर हिलाएगा, ठीक है? और वो भी कहेगा कि यस प्लीज टू मीट यू टू या नाइस टू मीट यू टू। डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि वो फ्रेज, इसीलिए आपके पास चॉइसेस हैं, नाइस टू मीट यू, गुड टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू। सो इट्स नॉट मैंडेटरी, अगर सामने वाला प्लीज टू मीट यू बोल रहा है तो आप भी बोलें, आप दूसरा यूज कर लीजिए। गरीबी थोड़ी है हमारे पास एक्सप्रेशंस की, ठीक है? अब देखो ए, अब ये थोड़ा सा, ये किसका आ गया, ये इनफॉर्मल सेटअप का है, दिस इज इनफॉर्मल। अब आ गया फॉर्मल सेटअप। ए सेज गुड मॉर्निंग आई एम केतन सिंह, जो पीछे आपने बात सीखी है। इन फॉर्मल सेटअप यू आर सपोज टू स्पीक योर कंप्लीट नेम, गुड मॉर्निंग माई नेम इज केतन सिंह या आई एम केतन सिंह। बी सेज प्लीज टू मीट यू आई एम जतिन शुक्ला। ए सेज नाइस टू मीट यू टू, 2 बार टू लिख दिया है गलती से ये टाइपिस्ट ने, नाइस टू मीट यू टू भी कह सकते हैं आप यहां पे, लास्ट में टू। तुमसे भी मिलके बड़ा अच्छा लगा। अब देखो यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपने एक्सप्रेशन है जो आपने सुना भी होगा
आई लव यू, राइट, आई लव यू। सो वहां पे क्या बोलते हैं फिर? आई लव यू टू, आई लव यू टू। सो अब यहां पे क्या बात समझ में आ रही है कि भाई तुम मुझे प्यार करते हो, मैं तुमको भी प्यार करता हूं। हैं बहुत सारे लोग जिनको मैं प्यार करता हूं, तुम भी उसी फहरिस्त में शामिल होगे, तुम भी उसी फहरिस्त में शामिल हो गए। दैट्स द मीनिंग आई लव यू टू। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हें प्यार करता हूं, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूं, तो आई टू लव यू टू की प्लेसमेंट। तो ये बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जो पॉपुलर कल्चर में इस्तेमाल होती हैं और हम बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं उसको, और इतनी आदत पड़ गई है कि जब सही सिचुएशन में यूज करना होता है तो वो गड़बड़ हो जाता है। अब लाइक देयर इज अ फ्रेज वी यूज, आई लुक, आई एम, मैं सही बोल देता हूं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। This particular statement you write in your emails, right? Even in speaking you use, I am looking forward to meet you. But this structure is incorrect, right? Incorrect. I am looking forward to meeting you is correct. Look forward to is a phrase which takes gerund as an activity. So meeting वहां पे आएगा। एकदम अगर आप प्योरिटेनिकल होके जाओगे तो आप बोलोगे आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ये बिल्कुल प्योरिटेनिकल है, बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, स्पीकिंग में थोड़ा आप इनफॉर्मल हो सकते हैं, बट गलत नहीं हो सकते ना। सो आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली प्योरिटेनिकल एज पर द ब्रिटिश इंग्लिश स्टैंडर्ड, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इज ऑल्सो करेक्ट। देर इज नो प्रॉब्लम इन राइटिंग और स्पीकिंग दिस वे, बट I am looking forward to meet you is absolutely incorrect. But 70 to 80% people write this particular expression in their emails, or they use this particular expression in speaking. And this is dangerous. सीखना है भाई, भाषा सीखनी है हमें। अगर गलतियां, ये आप नहीं कह सकते, लॉजिक दे सकते सब लोग तो यही बोलते हैं। बेवकूफी हमेशा ही सब लोग करते हैं। बेवकूफी जनरली भीड़ की एक पहचान होती है, राइट? सो वो कई बार आपको बेवकूफी करते नजर आएंगे, तो आपको ये देखना है कि नहीं, वो अगर 90% लोग वो गलत यूज कर रहे हैं तो इससे ये नहीं कि वो सही हो जाएगा, आपको सही सीखना है। बात समझ में आ गई? सो डू आई, डू सो आई, शमीम आएंगे, उसके ऊपर भी आएंगे। इंट्रोड्यूसिंग अदर पीपल। अब आप देख लो, जो दिस इज वाला कॉन्सेप्ट था, दिस इज और उसके बाद नेम ऑफ योर फ्रेंड, राइट? ये इंपॉर्टेंट बात है कि दिस इज बोलो और उसके बाद अपने दोस्त का नाम बोलो कि आप किसी, अब यहां पे 3 लोग हो गए, आप आए हो, आपके साथ आपके मित्र आए हैं और सामने एक इंसान और बैठा है। अब आप अपने मित्र को सामने वाले से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो वहां आप क्या बोलेंगे? दिस इज, एंड देन आप अपने दोस्त का नाम लेंगे। सो नाउ गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन। ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर, ही इज अ कलीग, शी इज माई कजन। कुछ भी इस तरीके से आप बोलिए कि दिस इज सौरभ, दिस इज आर्यन, राइट? दिस इज आर्यन, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। दिस इज आर्यन, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। दिस इज आर्यन, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर, राइट? तो ये तरीका ज्यादा बेहतर है कि जब किसी और को आप इशारा, क्योंकि दिस लगा हुआ ना, दिस यू डू नो, दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है? सो दिस इज, उसके बाद आपको थर्ड पर्सन का जो है उसका नाम लेना है वहां पे। बात समझ में आ गई? हाँ साजिद, जो भी डाउट है सब पूछना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सौरभ पूछ रहे क्लास बेसिक से होगा ना? बेटा ये बेसिक ही चल रहा है, ये सबसे बेसिक होता है। यही बेसिक है जहां पे आप ये कोशिश में रहते हो कोई बता दे कि हमें कहां पे क्या बोलना है, कोई हमें बता दे कहां कैसे बोलना है। इसीलिए तो स्पीकिंग का बैच ज्वाइन किया है ना। तो सबसे बेसिक लेवल पे बात यही है कि हमें कहां बोलना है, कैसे बोलना है, फॉर्मल सिचुएशन क्या है, इनफॉर्मल सिचुएशन क्या है, कहां हाय लगाएं, कहां हेलो लगाएं, कहां पूरा नाम बोले, कहां आधा नाम बोल सकते हैं। ये सब ही तो बेसिक है। और क्या है स्पीकिंग में? तभी मैंने कहा कि दिस इज द फर्स्ट स्टेज। इसके बाद आएगी बात ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू। इंटरव्यू में भी कई लेवल होते हैं ना, किस लेवल का इंटरव्यू है? अब लेवल जो यूपीएससी का लेवल है या कैट का लेवल है इंटरव्यूज का,
प्रीमियर बी स्कूल्स का, वो बिल्कुल टफेस्ट लेवल है आपका, राइट। या एसएसबी में जिस तरह के मेंटल चैलेंजेस आप फेस करते हैं, तुम एक नॉर्मल नौकरी के लिए जा रहे हो, फ्रेश ग्रेजुएट हो, वहां पे कैसा इंटरव्यू होगा, आईटी का कैसा होगा, एचआर का कैसा होगा, टेक्निकल इंटरव्यूज कैसे होंगे, वो सारी चीजें अलग अलग हैं, तो वो सब आपको विस्तार से बताऊंगा मैं। वो सेकेंड स्टेज है। और तीसरा जो स्टेज होगा, जब आप ये सब सीख लोगे कि अच्छा हाँ अब बात समझ आ गई, क्या करना है, कैसे करना है, तो कैसे के लिए लास्ट में हमारा जो तीसरा सेक्शन आएगा इसका, जहां पे सारी टेक्निकल बातें, किस तरीके से आपके बोलने के सारे अंग काम करते हैं, उनका क्या रोल है, ये सब देखेंगे हम। बात समझ में आ गई? तो इंट्रोड्यूसिंग अदर पीपल के लिए ये आप यूज करते हैं, दिस इज का ध्यान रखिए। अब आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए। खुद को इंट्रोड्यूस करना आई एम या माई नेम इज, दोनों आप यूज कर सकते हैं। किसी दूसरे को आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं किसी तीसरे से, तो वहां पे आप दिस इज के बाद उसका नाम ले लेंगे, और उसके बाद उसके साथ आपका क्या एसोसिएशन है वो आप बताओगे, जो कि यहां पे लिखा हुआ है। ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर, ही इज अ कलीग, शी इज माई कजन, और एनीथिंग लाइक दैट। Example conversations. A says, John, this is Paul. He's a friend of mine. Hi, Paul. Nice to meet you. Paul says, good to meet you, John. अब देख रहे हो यहां 3 लोग हैं और तीनों लोगों के बीच की बात हो गई। Devika says, this is Sally. She is my cousin. B says, hi, Sally. Pleased to meet you. Sally says, pleased to meet you too. Right? So, कई बार ये जो टू है ना, देखो एडवर्ब्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, एंड देयर इज अ काइंड ऑफ कंजेक्चर दैट इफ यू आर यूजिंग एनी एडवर्ब ईदर एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, तो जनरली वो पूरे सेंटेंस को डिस्क्राइब करता है, राइट? तो ये बिल्कुल चल जाता है, प्लीज टू मीट यू टू। बात समझ में आ गई? कलीग का क्या मतलब होता है? अजीत आप कौन सी क्लास में है मेरे भाई? किस क्लास में है आप? क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि कलीग शब्द आपने आज तक नहीं सुना? कलीग जो आपके साथ काम करता है उसे कलीग कहते हैं, ठीक है ना? गौतम कह रहे हैं सर जिस पॉइंट को नोट करना है, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा हाँ, नोट्स के लिए बहुत परेशान हो भाई, ये जो क्लास में लिख रहा हूं ना साथ में साथ, ये सब भी आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि देखो ये एक स्लाइड में है, तो मैं ये पूरा चाह रहा हूं कि आपको जब ये पूरा हो जाए तो एक साथ मिल जाए। तो इस चक्कर में, पीडीएफ के चक्कर में परेशान मत रहना बिल्कुल भी। तो ये आपको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से मिल जाएगा। क्लास नोट्स ही पूरा का पूरा मैं दे दूंगा, जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, कुछ लिख रहा हूं, इशारा कर रहा हूं, वो सब आपको मिल जाएगा। बाकी वीडियो आपके पास है ही, ठीक है? तो नोट करने के लिए मत परेशान रहो। अभी हमारे एक भाई और कह रहे हैं कि सर नोट क्या करना है ये बता दो। ये बहुत पुरानी आदत है, बचपन से याद होगा ना, स्कूल के दिनों में क्या लगता था कि यार अगर नोट नहीं कर पाए तब तो गया, क्योंकि जैसे ही हमारे गुरुजी टीचर जो हैं सामने, वो जैसे ही बोर्ड साफ करेंगे वैसे ही ज्ञान उड़ जाएगा। तो ये बहुत फियर रहा है बचपन से। मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां पे नोट बनाना बाद का काम है, पहले प्रैक्टिस में लेके आना है। स्पोकन है ये, राइटिंग नहीं है। जिंदगी भर राइट किया है तभी तो नहीं बोल पाते हैं, फिर वही बीमारी पकड़ लेंगे। आपको मैंने बोला ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। मैं बहुत जल्दी ये भी कोशिश करूंगा कि एक अच्छी सी डिसेंट बुक जिसमें तीनों लेवल, लेवल 1 स्पीकिंग, लेवल 2 स्पीकिंग, लेवल 3 स्पीकिंग, हर तरह की चीज भी आपको दूंगा। तो किताब और नोट्स के बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, फोकस रखो स्पीकिंग के ऊपर। हम बोल इसलिए नहीं पाते क्योंकि अंग्रेजी पूरी जिंदगी लिखी है, हमने पूरी जिंदगी लिखी है अंग्रेजी और पढ़ी है, बोलने पे काम नहीं हुआ। तो जो काम नहीं हुआ वो काम करने के लिए बैच ज्वाइन किया है। बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी हैं इस बैच में जो एनरोल हुए हैं, तो वो पढ़ाई भी कर चुके हैं, 4 साल 5 साल 6 साल उनको काम करते हो गया, बट स्टिल दे फेस दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम whenever they are supposed to give any presentation or they need to talk to the top management, उनके पसीने छूटने लगते हैं। वैसे वो अपने काम में बहुत कॉम्पिटेंट है, बट डेफिनेटली जब आप अपने करियर पाथ में ऊपर बढ़ते हो, सो यू नीड टू लीड द टीम। आप टीम लीडर बनेंगे, लीड करेंगे, आपके अंडर में 8 10 15 20 लोग होंगे, आपको अपने ऊपर वाले मैनेजमेंट से बात करनी होगी। रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, दोनों तरह की कम्युनिकेशन होती है। सो रिटन कम्युनिकेशन में कई बार बेहतर होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू ओरल कम्युनिकेशन, दैट यू हैव सम फैंटास्टिक आइडिया इन योर माइंड, बट आपको क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती है, आप अपने सीनियर से बोल नहीं पा रहे, अपने बॉस से बोल नहीं पा रहे। आपको पता है कि अगर मैं ये बोलूंगा ना तो मतलब कंपनी को बहुत फायदा होगा, मैं बॉस की नजर में भी आऊंगा, मेरी भी पर्सनल ग्रोथ होगी, क्योंकि उसको लगेगा अच्छा हाँ इस इंसान की वजह से मेरी ग्रोथ है। बट यू आर एक्चुअली एब्सोल्युटली अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग, तो आप अपनी टांग पीछे खींच लेते हैं। तो ये दिक्कत बहुत सारे लोगों की।
हम इसलिए इस बैच में स्पीकिंग पे फोकस कर रहे हैं, थियरी नहीं लिखनी है बैठ के यहां पे। मैं आपके लिए लिख चुका हूं, आपका काम मैं कर चुका हूं, नहीं तो मैं खड़े होकर बोल देता, आपको ये लिखना पड़ता। क्यों ये सारे नोट्स बनाए आपके लिए कि आपको अपना अपना पूरा फोकस आपको स्पीकिंग पे रखना है। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसकी टेंशन मत लो। अपने लिए थोड़ी ये सब चीजों को मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर किया है। बात क्लियर हो गई? तो अभी तक जो बात हुई है मैं बस 5 मिनट में 2 मिनट में उसको रिकैप कर देता हूं। इंट्रोडक्शन ग्रीटिंग की बात हुई, तो आपको पता लग गया कि भाई गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट कब कहना है, कैसे कहना है। और ये फॉर्मल सेटअप में है। इनफॉर्मल सेटअप में आपके पास हाय और हेलो है। हाय जो है वो आपसे जो जूनियर लोग हैं या इनफॉर्मल सा माहौल है वहां पे यूज होगा, हेलो थोड़ा सा फॉर्मल में यूज हो जाएगा। ये हो गई ग्रीटिंग की बात। फिर आती है बात इंट्रोडक्शन की। अगर खुद को इंट्रोड्यूस करना है देन यू कैन यूज आई एम, टेक योर नेम, माई नेम इज, एंड देन पुट योर नेम आउट देयर। और उसके बाद तीसरा जो तरीका है इंट्रोडक्शन का, वो जब आप किसी और को किसी तीसरे से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तब होता है, एंड दैट इज व्हाट दिस इज। सो दिस इज अजीत, माय फ्रेंड, आर माय कजन, और कुछ भी इस तरीके का, तो आप वहां पे इसको यूज करते हो। यही हमने अभी तक सारा यहां पे पढ़ा है, ठीक है। फुल नेम हाफ नेम वाली बात आपको समझ में आ गई। इनफॉर्मल में आप हाफ नेम लेते हैं और फॉर्मल सिचुएशन में फुल नेम लेते हैं। फॉर्मल सिचुएशन में इनफॉर्मल होना डेंजरस हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। कूल डूड बनने के चक्कर में काम खराब नहीं करना, राइट। यू आर फेसिंग एन इंटरव्यू, अब किसी अच्छी जॉब का इंटरव्यू है, आप वहां कूल डूड बन के गए हैं तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये समझना है कि व्हाट इज फॉर्मल, व्हाट इज इनफॉर्मल। जैसे मैंने कहा कि सवेरे ऑफिस में आपकी मुलाकात हुई विद योर बॉस, सो दैट इज अ फॉर्मल सेटअप। बट इन द इवनिंग देर इज अ पार्टी ऑफ योर कंपनी, राइट, एंड डेफिनेटली वहां पे बॉस भी इनफॉर्मल है, आप भी इनफॉर्मल है। सो नाउ द कन्वर्सेशन विल बी व्हाट, दैट वुड बी इनफॉर्मल, बिकॉज दैट इज एन इनफॉर्मल सेटअप। सो सेटअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीकिंग में सेटअप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप कहां बोल रहे हैं। अब जैसे मुझे कई बार टॉक्स देने जाना होता है, सो डेफिनेटली मैं एक्चुअल बात शुरू करने से पहले मैं एक बार हॉल विजिट करता हूं। जो कोऑर्डिनेटर होते हैं मैं कहता हूं एक बार वो दिखा दो, हॉल दिखा दो, मुझे कहां से बोलना है, कितनी ऑडियंस होगी, किस तरह की ऑडियंस होगी, राइट। ये सब मुझे पूछना पड़ता है क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं क्या बात करने वाला हूं। तो इफ माई ऑडियंस इज अ स्कूल स्टूडेंट्स, तो मुझे अलग तरीके से बात करनी होगी। कॉलेज स्टूडेंट्स अलग तरीके से बात करनी होगी। अगेन डिपेंडिंग ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट्स बात अलग तरीके से होगी। तो ये क्या है, ये डिपेंड करता है कि व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस, व्हाट इज द सेटअप, राइट। इट्स अ फॉर्मल सेटअप, इट्स एन इनफॉर्मल सेटअप। अब मान लो मैं डायस से उतर के स्टूडेंट्स के बीच में आ गया तो वहां पे इनफॉर्मल हो जाएगा मामला। वो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, अगर मान लो 1 घंटा मैंने ज्ञान दिया उनको कुछ, सो अब वो मुझसे और सवाल पूछना चाह रहे हैं। अभी तक वो मुझसे डर रहे थे या दूरी थी कि चाह सर खड़े हैं, आए हैं बाहर से ज्ञान देने। अब मैं उनके बीच में आ गया, उनके साथ बैठ गया, इनफॉर्मल हो गया, तो अब वो दिल खोल के अपनी बात कर पाएंगे और वहां बात करने का तरीका मेरा अलग होगा। बट वाइल आई एम गिविंग अ टॉक, तो वहां पे तरीका बिल्कुल अलग है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज फैक्टर्स। ये सब बातें हम धीरे धीरे आगे करेंगे क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग पे भी टॉक होगा, यहां पे ज्ञान दिया जाएगा आपको पब्लिक स्पीकिंग में क्या ध्यान रखना है, वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन में क्या रखना है, जीडी में क्या रखना है, वो सब आगे सेकेंड स्टेज में देखेंगे। चलिए टॉपिक 4, गिविंग पर्सनल इंफॉर्मेशन इन इंग्लिश। समटाइम्स पीपल आस्क यू फॉर पर्सनल डिटेल्स सच एज नेम, address and date of birth. Here are some typical questions and ways you can answer. Again basic सी चीज, क्योंकि देखो जब इंट्रोडक्शन दे दिया, ग्रीट कर लिया, इंट्रोडक्शन दे दिया, तो आगे क्या होगा, अब बातचीत होगी, पर्सनल डिटेल्स शेयर होंगी, क्या कहां से आए हो, क्या कर रहे हो आप। तो इनमें हम क्या क्या कर सकते हैं, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, कैसे बोलना यही नहीं समझ में आता है। कई बार पूछो बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कई तो ऐसे अंग्रेजी बोलते हैं आई एम रीडिंग इन 8, रीडिंग नहीं स्टडिंग, या आई एम इन, सीधा बोल दो। स्टडिंग और रीडिंग में फर्क होता है ना। सो मैं पढ़ रहा हूं, अब आप हिंदी जब अनुवाद रटते हो तो मैं यहीं पे मामला खराब होता है। तो रीडिंग का मतलब पढ़ना एज इन एक्टिविटी, कि आप लिटरली उस समय कुछ पढ़ रहे हैं। सो स्टडी और रीड में फर्क है। एनीवे, तो आप सीधा बोल सकते हैं कि भाई आई एम इन दिस पर्टिकुलर ग्रेड। लेकिन वहां पे 8 जब आप बोलते हो तो वो गड़बड़ है। 8 क्लास में आप एक साथ नहीं पढ़ रहे, आप 8वीं क्लास में पढ़ रहे हो, 8th में पढ़ रहे हो, 9th में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो। तो हम जब इस लेवल पे गलतियां करते हैं ना, तो सामने वाले का दिमाग घूम जाता है। 30 सेकेंड में उसका पारा हाई हो जाता है कि यार ये कैसा आदमी आया, इंट्रोडक्शन में बोल रहा है माई सेल्फ, कुछ महान विभूतियां बोलती हैं आई बिलोंग्स,
भाई ये कहां कहां पढ़ लिया तुमने कि आई के साथ वर्ब में एस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में? आई बिलोंग होता है, आई बिलोंग्स बोलते हैं, कुछ पता नहीं कहां से कब कब का दिमाग में बचपन का 15 साल 20 साल पुराना वो डाल के बैठे हुए हैं, आई बिलोंग्स। तो ऐसी बहुत सारी हम गलतियां करते हैं जिससे सामने वाला पुट ऑफ हो जाता है, फिर वो कोई इंटरेस्ट शो नहीं करेगा आपसे बात करने में। देखो, आइए देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन वर्ड्स। अब आप जो भाई कह रहे थे ना कि सर अंग्रेजी, ये कबीर सज्जन ने लिखा, सर आप उनके लिए पढ़ा रहे हैं जिनको अंग्रेजी आती है। तो बेटा हाँ, अंग्रेजी आती है तभी तो अंग्रेजी में बात करोगे ना, है? तो इतने तो बड़े हो गए कि स्कूल गए हो गए आप, तो उतनी अंग्रेजी आपको आती है जितना स्पीकिंग के लिए चाहिए। अब उनके लिए भी ये सब चीज लिखा गया। क्वेश्चन वर्ड्स यू डू नो, हु, हुज, व्हाई, वेयर, व्हाट, विच, व्हेन, हाउ। सो हु इज व्हाट? आस्क फॉर नेम और पर्सन। हु आर यू? कई बार फिल्मों में भी नहीं दिखाते हैं, हाँ हाँ वही तो, हाउ आर यू, हाउ आर यू। आमिर खान की कोई फिल्म थी ना, हु आर यू की जगह हाउ आर यू। तो भाई जब नई नई अंग्रेजी बोलना सीखते हैं तो ये सब गड़बड़ हो जाती है अगर आप रटके बोल रहे हैं तो खैर ये बेसिक शब्द है। हु का मतलब कौन, हुज का मतलब किसका, इट्स अ पजेसिव केस, इट्स अ पजेसिव केस जिससे आपका रिलेशनशिप पता लगता है, इसीलिए लिखा हुआ है आस्क्स अबाउट द ओनर, लाइक हुज बुक इज दिस, हुज कार इज दिस, किसकी किताब है ये, राइट? सो हुज इज किसका, किसकी, किसके। व्हाई, आस्क फॉर अ रीजन, व्हाई डिड यू कम लेट, व्हाई डिड यू कम लेट। वेयर, आस्क फॉर अ प्लेस, वेयर वॉज ही बीटन अप, उसे कहां धोया गया था। What, asks about a thing or a concept, right? What are you thinking? What is this? Which asks about a thing, right? Choices के लिए which आता है. Even with living beings we can use which, like which of these two candidates is suitable for this particular job. So it's not like that कि which सिर्फ आपके नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल होता है। चॉइसेस में आप which का इस्तेमाल लिविंग के साथ भी करते हैं। जनरली which is a relative pronoun, और which सवाल भी पूछेगा, which is interrogative pronoun as well as interrogative adjective. Like if I ask you which is your favorite movie or which is your favorite novel, here which is what, it's a, अब इसीलिए ना टेक्निकल में नहीं घुस रहे हैं हम, this is what, this is interrogative pronoun. But if I ask you which novel do you like the most, which movie is your favorite of 2020, so this is what, now which movie, which color, right, which book, ये सब के सब क्या है, यहां पे which अगेन सवाल पूछ रहा है, इट्स इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाई इज इट सो? बिकॉज इट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। बुक इज नाउन, which book, which color, but which is your favorite color, here is placed after which, that is why which is interrogative pronoun over here. And whenever which comes in between the sentence and create a relationship, that becomes relative pronoun. Anyway, when timing की बात करता है, when did you reach there, सवाल पूछने के लिए है ये सारे। हाउ जो है आस्क अबाउट द वे समथिंग हैपेंस, इसीलिए हाउ इज व्हाट, दैट इज द एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ, ये काम तुमने कैसे किया। हाउ डिड शी परफॉर्म, हाउ हैज ही प्लेड। ऑल्सो हाउ मच एंड हाउ मेनी टू आस्क अबाउट क्वांटिटी एंड नंबर रेस्पेक्टिवली। यू डू नो दैट हाउ मच वाटर इज देयर इन दैट बॉटल, कितना पानी है उस बॉटल में। So how much talks about quantity and how many talks about number, right? So ये भी पता होना चाहिए कि number आप countable noun का बता सकते हो, uncountable will go with how much. So how long to ask about duration and how often to ask about frequency. तो ये देखो, ये 4 phrases आपके पास यहां सवाल पूछने वाले दिखाई दे रहे हैं। How long and then how often. How often do you visit this place? I visit this place once a week. I visit this place twice a week. So how often talks about frequency, कि उस काम की बारंबारता क्या है, वो काम कितनी बार हो रहा है। तो how often क्या पूछता है, frequency पूछता है। how long लिखा है तो डेफिनेटली ड्यूरेशन की बात करेगा। अभी आज हम इंग्लिश स्पेशल 49 की क्लास में टेंस पढ़ रहे थे, तो वहां पे एक क्वेश्चन था इस तरीके से, how long you are preparing, राइट, आई वॉन्ट टू नो हाउ लॉन्ग यू आर प्रिपेयरिंग, इस तरह से कुछ सेंटेंस था। तो हाउ लॉन्ग आते ही समझ में आ गया कि यू आर प्रिपेयरिंग इज इनकरेक्ट, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन प्रिपेयरिंग। इफ हाउ लॉन्ग इज कमिंग इन बिटवीन द सेंटेंस, दैट इज बीइंग यूज्ड एज इन मोर ऑफ कनेक्टर। सो आफ्टर दैट व्हाट यू राइट, दैट शुड बी रिटन इन असर्टिव मैनर, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग।
सो लॉन्ग लग गया, ड्यूरेशन पे फोकस है, और जब भी ड्यूरेशन पे फोकस होता है यू राइट द सेंटेंस इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये सारे सवाल पूछने वाले शब्द हैं। अब देखो कॉन्वर्सेशन यहीं से तो चलेगा ना, आपने इंट्रोड्यूस कर लिया, एक दूसरे से बात कर ली, ग्रीटिंग्स हो गई, तो अब कुछ सवाल पूछोगे जिंदगी के बारे में, व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, क्या कर रहे हो तुम आजकल, राइट, कैसा था वो प्रोजेक्ट, कहां गए थे, कब मिला था उससे, तो ये इन सभी जगहों पे सवाल पूछ रहे हो। अब देखो जो हमारे भाई कहते हैं सर अंग्रेजी नहीं आती, अब इतनी तो इसीलिए उनके लिए है ये, रिमेंबर द वर्ड ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस, जो तुम्हें दूसरी तीसरी कक्षा में सिखाया गया। क्वेश्चन वर्ड ऑप्शनल, ऑक्सिलरी डू डज वर्ब टू बी, जैसे जरूरत है वो लगा लो गया, सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, जैसे यहां पे देख लो वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, पहला दूसरा यहां पे 3 लिखना चाहिए था, टाइपिस्ट से गलती हो गई। तो यहां पे क्या देख रहे हैं आप, वेयर इज व्हाट, दैट इज क्वेश्चन वर्ड, देन ऑक्सिलरी वर्ब कम्स, डू डज डिड जैसे भी है, देन यू विच इज सब्जेक्ट, और फिर लिव वर्ब आ गया, राइट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसका पूरा कुछ और तुम्हें अगर उसमें ऐड करना है सेंटेंस में, तो सारी की सारी बातें आ गई। वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, व्हाट इज योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारा क्या नाम है, डू यू लाइक रीडिंग। अब देख ये वाला सवाल देखो अलग हो गया, आपको पता है जब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, सो देयर आर 2 टाइप्स, वन इज ओपन एंडेड एंड द सेकेंड वन इज क्लोज एंडेड। सो एक में सवाल का जवाब हां और ना मिलता है आपको। अब जैसे किसी ने पूछा कि डू यू लाइक रीडिंग, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ईदर यस और नो, हाँ या ना। तो एक सवाल वो है जिनका जवाब हाँ और ना में मिलता है, और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं किसके द्वारा, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। वहां पे आप इसीलिए क्या लिखा था, क्वेश्चन वर्ड ऑप्शनल है, इट्स ऑप्शनल, कि भाई यहां पे जैसे 2 में देखो क्वेश्चन वर्ड लगा, यहां नहीं लगा, बट इंट्रोगेटिव तो तीसरा वाला भी है सवाल पूछने के लिए। सो हां और ना में जब आपको जवाब चाहिए, सो डेफिनेटली यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन विद हेल्पिंग वर्ब ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, डू डज डिड हैज हैव व्हाटसोएवर, राइट। बट अगर आपको कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या कर रहे थे, कब कर रहे थे, कहां कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, जब सवाल पूछने वाले शब्द चाहिए, या कब से कर रहे हो, कितना टाइम हो गया, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस, तुम इस काम में कितने लंबे समय से हो, क्या ड्यूरेशन है इस काम का, सो वहां पे चीजें बदल जाएंगी। इफ देयर इज नो क्वेश्चन वर्ड, द क्वेश्चन स्टार्ट विद द ऑक्सिलरी। अब देखो वही वाली बात कि अगर कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, जो हमने पीछे इन क्वेश्चन वर्ड्स की बात की, हु, हुज, व्हाई, वेयर, व्हाट, व्हिच, व्हेन, हाउ, हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग, हुम भी हो सकता है सवाल पूछने के लिए, हुम डिड यू मीट। सो इन सभी में अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है, क्वेश्चन स्टार्ट्स विद द ऑक्सिलरी, वो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो जाएगा, डू डज डिड हैज हैव, उनसे आप शुरू कर लेंगे, विल शैल जो भी है। टिपिकल क्वेश्चंस, व्हाट इज योर नेम, गिव योर फर्स्ट नेम देन सरनेम, माय नेम इज कमल शर्मा, आई एम कमल शर्मा, पीछे आप कर चुके हैं, ये बात समझ में आ गई। व्हाट्स योर फर्स्ट नेम, कमल। अब सामने वाला अगर मान लो यही सवाल पूछ रहा है, व्हाट्स योर फर्स्ट नेम, अब जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो वहां पे क्या होता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और फिर लास्ट नेम, समटाइम्स फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ये फॉर्मेट है। सो इसीलिए कोई पूछे तो आपको समझ में आना चाहिए क्या बोलना है, हैफ्जर्ड नहीं होना, परेशान नहीं होना। व्हाट्स योर सरनेम, फैमिली नेम और सेकेंड नेम, यानी आपके सरनेम के लिए ये 3 शब्द हैं हमारे पास। सामने वाला अगर पूछ रहा है व्हाट्स योर फैमिली नेम, तो दैट डज नॉट मीन कि आपका निक नेम पूछ रहा है कि बेटा तुम्हें घर पे किस नाम से बुलाते हैं, पुकार वाला नाम नहीं पूछ रहे, बिट्टू, सोनू, राइट। तो व्हाट्स योर यहां पे फैमिली नेम और सेकेंड नेम, इन सबका मतलब होता है सरनेम, सेकेंड नेम का मतलब सरनेम। सो आपने बता दिया भाई कमल शर्मा था, शर्मा हो गया। On a form, you can often see abbreviations before your surname. Whenever you write a form, वहां पे होता है ना, like the Mr, Mrs, Miss, Doctor, उसी की बात हो रही है। Mr for a man, Mrs, Miss and Miss for a woman. Mrs shows you are married, right? Miss shows you are single, and MS is if you would prefer not to show your marital status. Right, the female equivalent of Mr. So इसीलिए वहां पे मिस, अब आप नहीं इंटरेस्टेड हैं ये दिखाने में कि आप शादीशुदा हैं या नहीं है एक लेडी के तौर पे, तो आप वहां पे मिस का, MS का इस्तेमाल सिर्फ करेंगी। MRS जब लिखा जाता है तो वो क्या दिखा रहा है कि यू आर मैरिड, राइट, और अगर मिस लिखा हुआ है तो दैट इज व्हाट कि आप सिंगल हैं। सो MS जो है वो मिस्टर का इक्विवेलेंट है। अब देखो मर्दों में तो पता ही नहीं लगता, मिस्टर ही यूज कर रहे होते हैं आप, एंड दैट डजंट। अब देखो ये समाज हमारा दिखा रहा है कैसे हमने
भाषा का प्रयोग जो है, मैंने कहा संस्कृति से, समाज से का असर होता है पूरा। तो क्योंकि देयर हैज बीन अ पेट्रियार्कल सेटअप बहुत लंबे समय से पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो चीजें बहुत ही ओपन रही हैं, हमेशा से ओपन रही हैं। दर्जा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसी लैंड में कहा गया। हम सारी शक्तियां अपनी देवियों से लेते हैं, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा। सो लक्ष्मी इज द देवी ऑफ द मटीरियल करेंसी, सरस्वती इज द इंटेलेक्चुअल करेंसी एंड दुर्गा इज द इमोशनल करेंसी। ताकत, शक्ति की देवियां हैं। तो हमारे यहां वो हमेशा से हाई पेडेस्टल पे रही हैं। अब उसके बारे में कभी फिर आगे चर्चा करेंगे, चीजें कैसे बदली। और ये अभी जैसे कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिसगाइज नाउअडेज, दैट इज व्हाई कि विमेन आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल इन ईच एंड एवरी फील्ड। अब आप खुद ही देख लो, आज जाकर के अभी कल और आज में हमें मेडल्स मिले ओलंपिक में, नहीं तो सारे मेडल्स लेडीज लेके आ रही हैं। उस फील्ड में जहां फिजिकल का मतलब पुरुष माने जाते थे, वहां भी महिलाओं का दबदबा है अभी। और अब फिजिकल की जरूरत वैसे ही खत्म हो गई। बात वही है कि नाउ यू कैन लॉन्च अ मिसाइल जस्ट बाय अ टच स्क्रीन। तो अब आपको कहीं पे ना वो चप्पू नहीं चलाना या घुड़सवारी नहीं करनी है, वो वाला मेहनत वाला काम खत्म हो गया। और रहा क्या कि इतने हजार सालों तक महिलाओं का आकाश हमने लिमिटेड रखा, राइट। वो एक चार दीवारी के अंदर रही है, जिस तरह का कल्चर हमने डेवलप किया, तो महिलाओं के अंदर क्या ताकत डेवलप हो गई, धीरे 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 उनको कम में ज्यादा देखने की ताकत आ गई, वो डिटेलिंग में चली गई। और आज समय किसका है, डिटेलिंग का है। आज डिटेलिंग का समय है कि आपको कितनी समझ है, योर अंडरस्टैंडिंग, योर इमोशनल इंटेलिजेंस, योर असिमिलेशन पावर, योर एनालिटिकल पावर, योर पावर ऑफ सिंथेसाइज करने की कितनी ताकत है आपकी। तो ये सारी चीजों की जरूरत है। और इसीलिए आप देखो हर जगह महिलाओं के नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो पुरुषों को थोड़ा सचेत रहने की बात है कि आप थोड़ा सा मिलिए, अपने साथ जुड़ाव बढ़ाइए। और रोना छोड़ना पड़ेगा हमें, दोनों पार्टीज के लिए बात एप्लीकेबल है, राइट। तो ये भी लेडीज को जो नकली फेमिनिज्म कई बार आ जाता है, वो उससे भी आप किनारा छोड़ें। आपका इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा है और आप जिस भी हालात में हैं उस हालात में बेहतर करने के लिए सोचना है। मैंने थोड़ा सा आपको सोशियो साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करी एनीवे, क्योंकि देखो यहां से ये बात निकल के आई कि महिलाओं के लिए तुमने तीन तीन तरह के बना रखे हैं। पुरुष का मिस्टर, उसका पता नहीं लगना चाहिए वो शादीशुदा है या नहीं शुदा है। तो लेकिन क्योंकि वो कल्चर रहा है, महिलाएं भी एक कमोडिटी की तरह से इस्तेमाल होती रही, वो भी एक सामान है। और जितनी महिलाएं हैं, इतनी शादियां, ये वो एक आपकी ताकत का प्रतीक रहा समाज में। और उसमें कुछ हद तक शायद महिलाओं का भी योगदान रहा होगा। तो एनीवे, तो ये सब बात का डिस्कशन कभी करेंगे आगे, जब जीडी की बात आएगी, ग्रुप डिस्कशन की बात आएगी, कंटेंट क्रिएशन की बात आएगी। विल हैव डिटेल्ड डिस्कशन विद लॉट्स ऑफ लॉजिक, राइट। और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आपको देखने को वहां पे मिलेंगे। एनीवे, अगला क्या है, व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ। इट्स, आप आगे बोल सकते हैं, इट्स द डे मंथ, ईयर बोल दो आप, 2 जुलाई 1989, या व्हेन वर यू बॉर्न पूछा जा सकता है, तुम कब धरती पे आए थे, कब प्रकट हुए थे, तुम्हारा प्रकटीकरण कब हुआ था, ऑन द 2 जुलाई 1989, राइट। कैन यू राइट, यू कैन राइट 2 जुलाई 1989, लिखने में ऐसा लिख सकते हैं आप, राइट, जुलाई 2 1989, बट बोलने में 2 जुलाई ही बोलोगे, 2nd, 3rd, 4th, 5th। और मैंने तो भाई नंबर भी दे दिया इसीलिए कि किसी को दिक्कत हो तो ये सब नोट में आपको मिल जाएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, यही नंबर है। 12th, 20th, 21st, 23rd मार्च, आई वॉज बॉर्न ऑन 23rd मार्च 1989। तो ये ध्यान में आपको इस तरह से रखना है कि सही यूज करो। अगला है, व्हाट्स योर मैरिटल स्टेटस, और आर यू मैरिड। ये नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, जैसे फॉर्म में जब डेटाबेस जो आपका लिया जाता है, आप क्या कह सकते हैं, आई एम मैरिड, आई एम सिंगल, आई एम डिवोर्स्ड, आई एम विडोड। तो जैसे हैं जो हैं आप उस हिसाब से आप इस्तेमाल कर लेंगे। शादीशुदा हैं, अभी शादी नहीं हुई है, तलाकशुदा हैं, या शादी के बाद आपके पार्टनर की डेथ हो गई है, तो उसके लिए आपने विडोड इस्तेमाल कर लिया। व्हाट्स योर एड्रेस, और वेयर डू यू लिव। व्हाट्स योर एड्रेस, नॉट एड्रेस, एड्रेस। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। और मैंने कहा था किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, डिक्शनरी है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, मरियम वेबस्टर, कॉलिंस, सब में आपके पास प्रोनाउंसिएशन है। वहां पे सुनिए उन प्रोनाउंसिएशंस को, जो BRE लिखा हुआ, ब्रिटिश इंग्लिश। गिव द फुल एड्रेस, जब भी एड्रेस लिखना भी है, नेम ऑफ द हाउस, स्ट्रीट नंबर, टाउन, सिटी, कंट्री, पोस्ट कोड, ये सब, ठीक है। सो टॉपिक 5 है पोलाइट फ्रेजेस, वो हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। So that's all for today's session. I think that you people got to learn a lot.
देखो ये सब सत्यप्रकाश पूछ रहे सर ये याद कैसे होगा, फिर वो याद से क्यों नहीं बाहर निकलते हो? हिंदी याद करके बोलते हो सत्यप्रकाश जी? हिंदी याद करके बोलते हो आप? अपनी मातृभाषा याद करके बोलते हो? नहीं बोलते हो ना, तो अंग्रेजी भी वैसे ही है। मैं बोलता हूं तो मैं यहां याद करके बोल रहा हूं क्या कि कुछ स्क्रीन लगी है मैं पेपर लेके कुछ पढ़ रहा हूं? अरे मुझे जो बोलना है मैं बोल रहा हूं ना, तो ये आ जाएगा। ये याद करने वाला जो साइंस है दिमाग से वो हटाना पड़ेगा, इनको याद नहीं करना, ये बस तुम्हारे लिए क्यूज है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी हालत बहुत खराब है, कि सब कुछ पढ़ाई लिखाई के बाद अगर मैं अपना नाम नहीं बता पाता हूं, मैं पैदा कब हुआ था, मेरी पढ़ाई लिखाई क्या हुई है, अगर ये नहीं बता पाता, या मैं सामने वाले से कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाता, बेसिक कॉन्वर्सेशन यार। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट हाउ द यूएस इकोनॉमी वर्कड इन द लास्ट 10 years है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट हाउ डू यू सी कि पिछले 7 साल हमारे एनडीए रेजिम के कैसे रहे। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट जियो पॉलिटिक्स के बारे में कि नहीं आपकी क्या राय है, मिडिल ईस्ट में किस तरह के संकट आने वाले हैं, या मैं ये नहीं पूछ रहा कि आपका क्या आउटलुक है 2030 में दुनिया में क्या क्या चीजों में बदला। आई एम आस्किंग अबाउट डैम यू, आपसे आपके बारे में पूछा जा रहा है। और अगर हम इस लायक भी नहीं हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा तमाचा है। इससे बड़ी जिंदगी में कोई गरीबी नहीं है। इफ आई एम 20+ और whatsoever your age is and I am not able to talk about myself for 90 seconds, इससे बड़ी दुनिया में क्या गरीबी होगी? मैं तो कुछ और थोड़ा ही पूछ रहा हूं। इन सभी बातचीत में जितनी अभी हमने की है, हमने नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की अभी तक बात की है। और उसके बाद भी जो अगली सीरीज है आपने को कल मैंने दिखाया ही था, आप दुकान पे जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं, इसीलिए इसको बेसिक लेवल रखा गया है। यहां पे कैसे बात करनी है, कैसे पूछना है, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, होटल में जा रहे हो, बुकिंग कर रहे हो, कुछ फोन पे बात कर रहे हो। मैं तो मतलब इतनी आपको ये भी बताया गया होगा कई बारी कि जो कॉल सेंटर में जब आप कॉल करते हैं ना, तो वहां पे कम से कम अंग्रेजी भाषा चुन लिया करो। वहां आता है ना 1 दबाएं हिंदी के लिए, 2 दबाएं अंग्रेजी के लिए, प्रेस 2 फॉर इंग्लिश। आप वहां पे भी 1 दबाते हो, कितना बुरे हालात है। अरे वो थोड़ी जज करने वाला है तुमको, कॉल सेंटर वाला का अच्छा इनकी अंग्रेजी तो हिली हुई है। अरे तुम्हें बस फोकस क्या करना है। इसीलिए अगर आप स्पीकिंग के साइंस में जाएंगे ना गहराई में, तो ये बात निकल के आती है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन या द वे यू आर स्पीकिंग इज मोर इंपॉर्टेंट और शुड बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस ओवर ग्रामर। इफ यू आर टॉकिंग टू अ नेटिव स्पीकर, यानी जो अंग्रेजी देश से ही आता है, अंग्रेजों वाले देश से आता है, नेटिव स्पीकर है, आप उससे बात करोगे ना तो वो इस चक्कर में रहेगा कि भैया तुम प्रोनाउंस तो सही करो कि कम से कम हम समझ सकें। अब तुमने बोला आई बिकेम नर्वस, तो वो उसको समझ ही नहीं आएगा कि भैया ये क्या बोल रहा है। नर्वस तो बोलो, वो बिकम कुछ अगर तुमने धीमा भी बोल दिया, नहीं उतने अच्छे से बोला, समझ में आ गया कि हाँ तुम नर्वस हो गए थे, आई बिकेम नर्वस। तो अब नर्वस पे तुम्हारा जोर है, आई पे जोर है, बिकेम के चक्कर में वहां पे मत पड़ो अभी उतना, जब नेटिव स्पीकर से बात कर रहे हो। तो पॉइंट इज व्हाट कि व्हाइल यू आर टॉकिंग टू एनीवन, योर फोकस शुड बी ऑन कि जो मैसेज कन्वे करना चाहते हो वो पहुंच जाए। तो ये भी आप कोशिश कर सकते हैं। यू कैन मेक योर ओन स्टोरी, यू नो। सपोज तुमने कॉल सेंटर वाले को कॉल किया, तुम अपनी प्रॉब्लम खुद ही बना लो, कुछ बनाओ स्टोरी। हाँ मैंने ये खरीदा था, वैसा किया था, इंगेज सम टाइम जस्ट टू टेस्ट योर सेल्फ। और उसके बाद आप उस बातचीत से आपको खुद पता लगेगा। वो भी खुद बोलते ना कि योर कॉल विल बी रिकॉर्डेड फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस। वो भी अपने जब नए बच्चे आते होंगे, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बने, उनको सुनाते होंगे, देखो ऐसे कस्टमर बात करते हैं, हमें ऐसे जवाब देना होता है, अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो उनका ये मतलब हो सकता है। तो आप वहां पे भी ट्राई कर सकते हो, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स पे कॉल करके। कंफर्टेबल फील करना जरूरी है। आप मौके से भागिए मत कि जहां अंग्रेजी का सामना आया वहां चॉइस अगर है तो मैं हिंदी चूज कर लिया। हिंदी तो यार ऑल योर लाइफ यू आर स्पीकिंग, यू आर एब्सोल्युटली कंफर्टेबल इन दैट, यू आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश। और आपको पता है कि इंग्लिश आपको के विंग्स को बढ़ाता है, उसकी रेंज बढ़ाता है, आपकी उड़ान बड़ी होगी। जैसे कहते हैं ना, जहां पैदा हुए फिर वहीं निपट जाते हैं, क्योंकि डरे हुए थे, सहमे हुए थे, अपने आप को कोई नया टास्क नहीं दिया। तो बहुत आसान चीजें हैं और बेसिक लेवल पे हम इसी आसान की बात करते हैं। और होपफुली कल अच्छा फ्राइडे है, सो अगले 2 दिनों में 2 क्लासेस के अंदर, होपफुली 2 क्लास के अंदर बेसिक्स का सेक्शन हमारा खत्म हो जाएगा और फिर हम अपने अगले स्टेज, दूसरे पड़ाव की तरफ आएंगे जहां बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपका इंतजार कर रही हैं। ठीक है, चले, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं कल और इसके बाद इसके आगे प्रोसीड करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। नॉट एबल टू सी योर कमेंट्स।
चलिए, so that's all. Let's catch up tomorrow at 5 p.m. right, and then we will proceed further. Thank you.